Hello students, in a first video I was telling you about reproduction, clear, and I have told you about types of reproduction, asexual and sexual. Okay, you should also know that plants also show asexual reproduction to produce new individuals. Okay, and this type of asexual reproduction that occurs in plants, it is called vegetative propagation. Okay, in vegetative propagation, vegetative part of the plant, parts of the plants like leaves, roots, tuber, bulb, etc. produce new individual without fusion of male and female gametes. Okay, for example, in case of bryophyllum plants, okay, if any leaves of the plants falls down on the ground, then it produces new individuals because lamella means age of leaves. जो आप ये किनारे देख रहे हैं ना, ठीक है, it is called lamella of leaves. It consists adventitious buds. Okay, when these leaves fall down on the earth, then it covers with soil, and you know very well soil contain water and mineral nutrients. In the presence of hygienic condition, these birds, adventitious birds, develops into the new plants. Okay, right now you can see here, by the help of leaves, new plant develops. Okay, without fusion of male and female gametes. Okay, in case of tuber, potato is an example of tuber. Okay, potato also show vegetative propagation. Okay, in case of potato, you are seeing many birds or many eyes. Okay, these birds have active cells. Okay, you have to cut potato into many pieces with birds. Okay, and grow these piece of a potato into the soil. लेकिन याद रखें कि जो ये पार्ट्स हैं पोटैटो के, इनके पास बर्ड्स होनी चाहिए. ठीक है, तो उसको आप ग्रो करवाएं सॉइल के अंदर. In the presence of hygienic condition, these birds develops into the new plants. Okay, this type of reproduction is known as vegetative propagation, in which vegetative parts of plants like leaves, roots, tubers provides help to produce new individuals. Okay, लेकिन बात यह है कि plants also show sexual रिप्रोडक्शन. क्लियर, और मैं बता चुका हूं आपको कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल gametes fuse with each other and produce new individuals. Okay, क्योंकि जो मेल gametes होता है प्लांट्स के, इसमें it is known as pollen grain. Okay, pollen grain fuses with egg to form zygote, and zygote develops into embryo, and embryo develops into new individuals. Okay, तो आप समझे इस चीज को कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर आते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिप्रोडक्शन की. ठीक है, समझे आप इस चीज को. अब बात चल रही है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स of living organisms. Okay,
each and every living organisms show different kinds of chemical reactions. Clear? And I have told you a living cell consists a fluid that is called protoplasm. In protoplasm many chemical reaction occurs. Okay, there are two types of metabolic reaction. First, anabolic reaction, and second is catabolic reaction. In case of anabolic reaction, small chemical substances form complex substances. Okay, example, during photosynthesis starch food is formed in plant leaves. In case of photosynthesis 6 CO2 and 12 H2O, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll pigment, they synthesize carbohydrate. Okay, C6H12O6 plus 6O2 plus energy. Okay, this type of example of anabolic reaction in which simple substances form complex substances. Okay, and in this reaction you should know that a free energy is stored in the form of potential energy. Okay, another examples of anabolic reactions are synthesis of protein by amino acids. There are many amino acids, combinedly they form protein. तो यहाँ पे जो सिंपल सब्सटेंस है वो कौन से हैं? अमीनो एसिड्स. और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कौन सा है? प्रोटीन है. ठीक है. अनदर एग्जांपल इज सिंथेसिस ऑफ fat by glycerol and fatty acids. Okay, now we will study about catabolic reaction. Catabolic जो reaction है, it is different from anabolic reaction. Okay, in this case complex substance breaks into small chemical substances. Okay, and in this reaction potential energy converts into kinetic energy. Okay, see here, in case of aerobic respiration, okay, ग्लूकोज, आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्टोमक में जाती डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल सब्सटेंस. ओके, लाइक ग्लूकोज C6H12O6. ओके, तो ग्लूकोज जैसे सेल्स के अंदर पहुंचता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वन प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. हियर ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज and lysis means breakdown. Okay, glucose is broken down into 6CO2 plus 6H2O and form energy. Okay, तो आप देख लें कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था
जो बहुत सारे केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, इट ब्रेक्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो बता चुका हूं आपको मैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दे बोथ अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, metabolic reaction is absent in non-living things. Okay, now we will study about another characteristics of living organisms. Okay, seventh characteristics, locomotion and movement. You know very well, higher living organisms show locomotion because they have well developed locomotory organs. Okay, mainly there are three types of locomotion in case of animals. First, amoeboid locomotion. Second is muscular locomotion, and third is ciliary locomotion. अब आप अपनी फिस्ट को बंद करेंगे और खोलेंगे ना, जैसे मुट्ठी को, जैसे बता रहा हूँ आपके सामने में, जैसे ये मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, फिर खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे बंद हो गया, ठीक है, तो यहाँ तो ऑर्गेनिज्म से रुक जाएगा, ठीक है, जैसे अमीबा है, और ये ओपन किया तो मैंने चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दिस टाइप। ओके, तो वो कहलाता है अमीबॉइड लोकोमोशन, दैट इज शोन बाय अमीबा। ओके, और इन आवर ब्लड जो सेल्स होती हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे ऑल्सो शो अमीबॉइड लोकोमोशन। ओके, muscular locomotion is shown by muscle cells, by the help of muscle cells। आपको पता है कि जो मसल सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर, ठीक है, हायर लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर, these muscle cells are connected with bones। ओके, तो जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं दे शो मस्कुलर लोकोमोशन, ठीक है, और कुछ लोअर जो एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, और कुछ जैसे स्नेक है, ठीक है, बर्ड है, बर्ड्स में है ना, और ये भी शो करते हैं, पैरेट है, पिजिन है, ये सब भी शो करता है मस्कुलर लोकोमोशन। सिली लोकोमोशन इज शोन बाय पैरामीशियम, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। पैरामीशियम के केस में क्या होता है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊं आपको, ठीक है, ये पैरामीशियम के स्ट्रक्चर है, and paramecium has many thin thread-like structures. Okay, these thin thread-like structures are called cilia. By the help of cilia, paramecium show pendicular locomotion. Okay, जैसे पेंडुलम होता है ना घड़ी का, जैसे बता रहा हूँ आपको मैं फिंगर से, ऐसे ये चलना फिर पीछे आना, आगे चलना फिर पीछे आना, ठीक है, तो उस तरह का लोकोमोशन कहलाता है सिली लोकोमोशन, ठीक है, पेंडिकुलर लोकोमोशन, जो कौन शो करता है, पैरामीशियम, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दे डू नॉट शो लोकोमोशन, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं ना, इन केस ऑफ प्लांट्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a tree does not move from one side to another side, okay, but plants show movements in the presence of external factors, clear। जैसे you have learnt in lower classes, if you touch the leaves of Mimosa pudica, Chuimi plants, Lajwanti plant leaves, clear, then when you touch, ठीक है, तो टच करते क्या होगा, दिस लीव्स फॉल्स अप, ओके, फॉल्स अप हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह से मूवमेंट है, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज थाइमोट्रोपिज्म। ओके, फिर बात चल रही है अपनी कि कोई प्लांट है, ठीक है, सनफ्लावर प्लांट, उसको आपने एक डार्क रूम में रख दिया,
ठीक है। तो और एक उस डार्क रूम में एक होल है, वहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, कि जो फ्लोर है, फ्लोर मूव टुवर्ड्स सनलाइट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स plants also show movements, it is called chemotropism. Okay, in the presence of water plants also show movement, it is called hydrotropism. और जो plant roots होती हैं they also show movement in the presence of gravity, it is called geotropism. Okay, तो जो ये factors हैं, ठीक है, मैंने जो आपको नोट्स भेजा उसमें लिख रखा है सारा कुछ मैंने, तो देखना है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ टच, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स जिसको हमने नाम क्या देंगे, कीमोट्रोपिज्म, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। ओके, फिर बात आ रही है अपनी living organisms show another process that is called excretion. Okay, कि जो भी वेस्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ammonia. Okay, these nitrogenous waste are released out from the body. Okay, this process is known as excretion. ठीक है, क्योंकि अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे then they cause harms in the body. Okay, in case of human beings, ठीक है, जो यूरिन है, यूरिन कंसिस्ट वेस्ट मेटल्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो दीज वेस्ट मेटल्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन इन केस ऑफ ह्यूमंस। ओके, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं दे रिलीज देयर वेस्ट बॉडी मटेरियल्स, ओके, बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, फिर बात चल रही है अपनी हीलिंग। हीलिंग के केस में क्या है कि वाउंड, अगर चोट लग जाती है लिविंग ऑर्गेनिम्स को, ठीक है, तो वाउंड इज हील्ड इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज न्यू सेल्स मेक स्किन, और जो स्किन बन जाती है वो फिल करती है, वो हील करती है, वो रिपेयर करती है किसको, वाउंड को. समझे आप इस चीज को, ठीक है. फिर जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अडेप्टेशन, ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट सुटेबल एनवायरमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, अडेप्टेशन इज इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है. अगर एनवायरमेंट्स में कोई चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, और वो अडेप्ट करते हैं एक सुटेबल एनवायरमेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, फिर हम बात करेंगे on another characteristics of living organisms that is known as consciousness. Each and every living organisms show consciousness in the presence of external stimulus. Okay, and these external stimulus are hot, cold, chemical, temperature. Okay, in the presence of these external stimulus living organisms show response. Okay, क्योंकि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन नर्व सेल्स. नर्व सेल्स ट्रांसफर
इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, ओके। और जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है रेस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये ना कि ज़्यादा हॉट हमें फील होती है गर्मियों के दिनों में, कोल्ड फील होती है हमें, ठीक है। अब किसी बैक्टीरिया को आप केमिकल्स में डाल देंगे, ठीक है, और वो लाइक नहीं करता केमिकल्स को, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिम्स अपने जो है रेस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं दे शो कॉन्शियसनेस, ओके। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे बुक है, टेबल है, पेन है, चेयर है, स्टोन है, ठीक है, दे डू नॉट शो कॉन्शियसनेस, ओके। समझा आप इस चीज को। उसके बाद फिर बात चल रही है अपनी कि एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है कि जो कोमा में के अंदर जो पेशेंट है, ठीक है, तो कोमा में क्या है कि वो रेस्पॉन्स शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि उसको फील नहीं हो पा रहा है, उसकी नर्व सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है। लेकिन वैसे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वैसे वो लिविंग है, उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह चल रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर बात चल रही है अपनी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है होम्योस्टेसिस। Each and every living organisms maintain their internal body environment, okay, in adverse conditions of टेम्परेचर, बॉडी का जो पीएच है, केमिकल, ठीक है। जैसे विपरीत जो परिस्थिति अगर आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच लेवल घट गया या बढ़ गया, ठीक है, केमिकल्स का जो लेवल है, कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, केमिकल कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो homeostasis, means they maintain their internal body environments in the presence of adverse conditions, okay। और जो लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, वो आप लोग जानते हैं वो क्या है, डेथ है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कि जिसने डिफरेंट फंक्शन शो किए हैं, ठीक है, लास्ट में जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, डेथ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेथ है, ठीक है, इट इज ए परमानेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। क्योंकि इस केस में ये हो रहा है कि जब जन्म होता है बच्चे का तो यंग वन जो है इट ग्रोज इन साइज and we can say that becomes adult, ठीक है। उसके बाद में फिर हम कहेंगे कि जब उसकी शादी होगी तो reproduce its own kinds individuals, ठीक है। उसके बाद में फिर उसकी एज बढ़ती रहेगी, ठीक है, सॉरी, undergoes aging, ठीक है, फिर वो बूढ़ा भी होगा, grows old, और लास्ट में ultimately death, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एंड दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एब्सेंट इन non-living things, okay। That's why we can say that on the basis of these different characteristics we can easily differentiate between non-living things and living things, okay।